भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् आगवेत्। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय केस्टोन नगर के तत्वावधान में आयोजित करने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में भाग लेने हेतु उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर पीटी जोसेफ जी, विद्यालय के प्राचार्य श्री रमेश कुमार प्रजापति जी, उप प्राचार्य श्री सुरेंद्र जी, खेलकूद की अध्यापिका अर्चना जी, प्रभारी मुख्य अध्यापक श्री करुणाकरण जी, शिक्षकगण, छात्र वृंद, कर्मचारी गण, अभिभावक वृंद एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उद्घोषकों की ओर से मेरी कामना है कि केंद्रीय विद्यालय केस्टोन नगर के तत्वावधान में आयोजित करने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह सबके लिए मंगलकारी हो। प्रतिवर्ष हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। वे ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी कोण को निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। सेना में ध्यानचंद जी सैनिक थे जो खेल के बल पर बाद में मेजर पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने 3 बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दुनिया के सामने खड़ा किया। हमारे लिए यह गौरव की बात है। बर्लिन ओलंपिक्स में खेलते समय उनकी क्षमता देखकर जर्मन तानाशाह हिटलर ने उनसे जर्मन टीम में ज्वाइन करने को कहा। साथ ही जर्मन सेना में ऊंचे पद प्रदान करने का वादा भी किया, लेकिन ध्यानचंद जी ने कहा, मैं भारतीय हूँ, अभी तक भारत के लिए खेला, आगे भी भारत के लिए खेलूंगा। ध्यानचंद जी का खेल, देश प्रेम आदि हमारे मन में सदा सदा के लिए रहेगा। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। यह दिन हमें खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है, प्रत्येक छात्र या व्यक्ति में निहित प्रतिभा को निखारता है तथा विश्व मंच पर भारत का नाम ऊंचा करता है। आगे हमारे इस कार्यक्रम को जारी करने के लिए विद्यालय की प्रशिक्षित अंग्रेजी अध्यापिका श्रीमती प्रिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रिया जी। धन्यवाद शैलजा मैडम। Honorable Chief Guest, Dr. P.T. Joseph, former Director, Department of Physical Education, Kannur University. Respected Principal, Shri Ramesh Kumar Prajapati, Vice Principal, Shri Surendra Kumar, Headmaster in charge, Shri Karunakaran Sir, distinguished parents, learned colleagues, and my dear little friends. My humble greetings to each one of you who has come together to celebrate the online sports day in the most befitting manner. At the outset, heartfelt wishes to each one of you for a safe, healthy, and peaceful life. A few months ago, we had not even in our wildest dreams thought of a situation that exists now. Since a few months, we have been living in a state of anxiety and fear. When the issue is health, we all are really very concerned. But humans possess such a magical skill to fight against any odds and adapt to the situation. The National Sports Day in India is celebrated on 29th August on the birth anniversary of the hockey legend Major Dhyan Chand. This is to honor and acknowledge the unmatchable hockey superstar who won gold medals in Olympics for India in the years 1928, 32, and 36. Following the protocol of the COVID-19 pandemic, maintaining a social distance, we have gathered here, of course, online,
to celebrate the National Sports Day in a very novel, innovative, and ingenious manner. Friends, no event commences without seeking the blessings of the Lord Almighty. Let's join together and pray for the smooth conduct of the program and, of course, for a good network support. As is our custom, let us begin by lighting the lamp. May I request the distinguished chief guest, Dr. P.T. Joseph, to kindly light the lamp. To accompany, sir, may I call upon our respected principal, sir, headmaster, sir, and the other members of staff over there to join. Sir, please. Shubham karodi kalyanam Arogyam dhana sambada Shatru buddhi vinashaya Dibajoti namostute Dibajoti parabrahma Dibajoti janardhana Divo haratu me pabam Dibajoti namostute Dibajoti namostute Dibajoti namostute धन्यवाद सर। भक्ति में प्रार्थना के लिए विशेष स्थान है। प्रार्थना याचना नहीं, उस सर्वेश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाने का भाव है। नैतिकता का मूलाधार है प्रार्थना। अब है बारी प्रार्थना की। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों से सादर निवेदन है कि प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। श्वेतपद्मासनस्थिताय श्वेतवस्त्रविभूषिताय अक्षमालाङ्गहस्ताय वीणाधरन् नमो नमः संगीतसाहित्यकुचाय युग्मनेत्रनिमीलिताय सुस्मेरवदनचन्द्राय सरस्वतीं पादमाश्रये सरस्वतीं पादमाश्रये सरस्वतीं पादमाश्रये। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर आसन ग्रहण करें। खेल भावना हमें जीत की खुशी और हार के दुख से ऊपर उठाकर समरसता की ओर ले जाती है। हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यही जरूरत है गुणगान की, जो सज्जनता के महारथी हैं। अभिनंदन हम करें आपका, उसे करें स्वीकार। अब है बारी स्वागत भाषण की। इसके लिए हमारे कुशल कर्णधार, सही मार्गदर्शक, विद्यालय के प्राचार्य श्री रमेश कुमार प्रजापति को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर। Most respected Sri Dr. P. Joseph sir, former HOD of the Physical Education Department, Kannur University, my staff members, students, parents, good morning to one and all. On this auspicious occasion, I heartily welcome my core of heart to Shri Joseph sir. He spared the valuable times in this tough time. Initially, he was not ready to come, but on the request of all the staff members, and
he agreed to come. So on behalf of Kendriya Vidyalaya Kaltron Nagar family, I extend my heartily welcome to Sir. I also welcomed all the staff members of Kendriya Vidyalaya, my dear students and also parents. In this tough time, this is a new type of celebration in which we are all online joined and sharing our thoughts. I hope that our efforts will definitely bring the results. Thank you to all. Once again, I heartily welcome to all those who are joined these programs. Thank you very much. Thank you, sir, for the formal welcome. The COVID-19 pandemic has spread to almost all countries in the world. Social and physical distancing measures, lockdowns and businesses, schools, and overall social life, which have become commonplace to curtail the spread of the disease, have also disrupted the regular aspects of life, including the sports and physical activities. Dear listeners, we all do understand that sport builds and reveals character of humans. It also serves as a great teacher, mentor, and motivator. Major Dhyan Chand is acclaimed as the wizard of hockey. His life is an inspiration to all the budding sportspersons. May I now call upon Mrs. Archana Singh, the physical education teacher of our school, to unravel the true account of this legendary sports star. Archana madam, please. थैंक यू प्रिया मैडम. सबको नमस्ते. हमारा आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि कन्नूर विश्वविद्यालय के पूर्व डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर डॉक्टर श्री पीटी जोसेफ सर, मेरे सहयोगी अध्यापक, अभिभावक और विद्या के प्यारे बच्चों, 29 अगस्त को पूरा भारतवर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहा है. यह इसलिए मना रहे हैं कि भारत के हरफन मौला हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है. अतः सरकार ने इसे नेशनल स्पोर्ट्स डे पहले ही घोषित कर दिया था. पूरा भारत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, खेल संघ, क्लब, ये सब आज उत्सव के जैसे मना रहे हैं. जैसे हम जानते हैं, कोविड काल में सबकी दिनचर्या में कितना बदलाव आ गया. मार्च के पहले हम सब अपने कार्यों में इतना व्यस्त थे और अभी तो बदलाव का सामना हम सबको करना पड़ रहा है. हमें जरूर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. देखा जाए तो अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. पहले के सजीव दिनचर्या में और अभी के क्वारंटाइन में बहुत बदलाव है. इसी लॉकडाउन के समस्या को देखते हुए केवीएस ने नेशनल स्पोर्ट्स डे को ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया. तो आज हम लोग ऑनलाइन स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जैसा हम सब जानते हैं, ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद में 1905 में हुआ. उस जमाने में ब्रिटिश काल में हमारा देश ब्रिटिश के अधीन था. पराधीनता के वजह से गांव के आम आदमी जो पढ़ाई, साहित्य, कला, खेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे. इनको करने के लिए बड़ा अभाव था. ध्यानचंद जी भी एक साधारण परिवार के थे जिनको इन सब सुविधाओं का बहुत अभाव था. ध्यानचंद जी के 2 भाई और 3 बहनें थी. इनके पिता प्रथम विश्व युद्ध में देश से बाहर जाना पड़े तो इनकी घर की मजबूरियों के कारण इनकी माता श्री इनको लेकर झांसी चले आए.
झांसी में बचपन में हॉकी खेलने के शौक की वजह से ध्यानचंद जी पेड़ की शाखा को तोड़ के, पेड़ की डाली को तोड़ के हॉकी स्टिक बना के खेला करते थे। और 6th क्लास के बाद ये फेल हो गए और उनकी पढ़ाई में वहाँ विराम हो गया। उसके बाद ये आगे पढ़ नहीं सके, तो 2-3 साल इनका ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद सेना में भर्ती का अवसर मिला, तो वो सेना में भर्ती हो गए और वो ब्राह्मण रेजिमेंट्स में सिपाही के पद पे भर्ती हुए। ध्यानचंद की जिंदगी का एक नया शुरुआत हो गई। उनके खेलने के शौक को एक अच्छी दिशा मिल गई। खेल के सहयोगी जब रात में अपना मनोरंजन, जब सेना में खेल के सहयोगी जब रात में मनोरंजन करते थे, बातचीत करते थे, टाइम पास करते थे, उस समय ध्यानचंद जी अकेले खेल के मैदान में चले जाते थे। रात की चांदनी में वो हॉकी पेड़ की शाखा के स्टिक बना के हॉकी खेला करते थे। एक दिन उनके जो कोच थे, जो जिस रेजिमेंट में वो ब्राह्मण रेजिमेंट में दाखिल हुए थे, उसमें हॉकी खेलने के लिए बहुत फेमस थे। उनके पास एक कोच भी थे जिनका नाम था बाला तिवारी। एक दिन बाला तिवारी ने देखा कि रात के अंधेरे में एक युवक इतना अच्छी तरह से अकेले ध्यान होके मग्न होके हॉकी खेल रहा है, तो उन्होंने को बहुत आश्चर्य लगा। चांदनी रात में मैदान में ध्यान को खेलते हुए, अकेले खेलते हुए देखकर उन्होंने उनको पास बुलाया और आशीर्वचन दिए और कहा, जैसे कि तुम रात के चांद में अकेले वो हॉकी खेल रहे हैं, उसकी रोशनी में, उसी से तुम्हारा नाम आज से मैं ध्यानचंद रखती। तो उनका पहले नाम ध्यान सिंह था, बाद में उनके कोच ने उनको ध्यानचंद के नाम से बताया और उसके बाद वो ध्यानचंद के नाम से ही खेलने लगे। हॉकी खेलते हुए ध्यानचंद का कोई मुकाबला नहीं था। जैसे आसमान में चांद चमकता है, उसी तरह ध्यानचंद जी की चमक खेलों में थी। ऐसे आसमान में चांद की रोशनी होती थी, उसी तरह उनका जो खेल में था वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा था। अपनी मेहनत से मिली और सेना से मिली सुविधाएं, क्योंकि सेना में जब भर्ती हुई तो उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिली, खेलने की, प्रैक्टिस की, टीम की। तो अपनी मेहनत और सेना से मिली हुई सुविधा से ध्यानचंद के खेल में बहुत निखार आता चला गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए और बाद में वो हॉकी के जादूगर कहलाने लगे। अपने जीवन में उन्होंने 1000 से अधिक गोल दागे। एक साधारण बात नहीं, उन्होंने अपने जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। वहां खेलने के लिए जब उतरते थे तो लोग उनके खेल के स्टिक को देखते थे कि ऐसा लगता था मानो उनके स्टिक में बॉल चिपक गई है। नीदरलैंड में एक बार उनके साथ जब वो मैच खेल रहे थे तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसे खेल सकते। तो मैच को बीच में रोक के उनकी हॉकी को तोड़ के देखा गया, कहीं उसके अंदर मैग्नेट तो नहीं लगा। और जब वो देखा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि ये भी ऐसा भी खिलाड़ी हो सकता है कि जिसके बॉल और हॉकी के साथ इतना अच्छा संबंध बना हुआ है। ध्यानचंद जो ध्यानचंद का पहला टूर्नामेंट था वो दिल्ली के सालाना में खेला गया और उन्होंने उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सारे मैच अपने रेजिमेंट्स को जिताए। तो उनका बाद में उनके मैच का प्रदर्शन देख के उनका सिलेक्शन न्यूजीलैंड में टीम जा रही थी 1926 में, तो सिलेक्शन हुआ। वहां पे वो गए और वहां पे उन्होंने 20-21 मैच खेले, उसमें से 18 मैच जीते, 2 मैच ड्रॉ रहा और 1 मैच हार गए। उन्नीस 1927 में उनको मैच का अच्छा प्रदर्शन देखते हुए 1927 में उनका मैच का अच्छा प्रदर्शन देखते सेना ने उनको प्रमोशन दिया। वो सिपाही से लांस नायक बन गए। अब आती है उनके खेल जीवन के बहुत विशेष कार्य को बताने का कि 1928 में पहला ओलंपिक जो उन्होंने खेला वो भारतीय टीम, पहले भारतीय टीम को सेलेक्ट नहीं किया गया था लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको हो गया और वो भारतीय टीम से इंग्लैंड में 11 मैच खेले। वहां ध्यानचंद की सफलता की बहुत प्राप्त हुई। आम्स्टरडैम में भारतीय टीम में सबके मुकाबले में जीत गई। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और फाइनल हॉलैंड को हरा के विश्व में भारत
सबका चैंपियन बना और गोल्ड मेडल लेके विजयी घोषित हुआ। उसके बाद सेकंड ओलंपिक आया, उसमें 1932 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक प्रतियोगिता में ध्यानचंद की टीम भी शामिल करी गई। ध्यानचंद की टीम मतलब इंडिया टीम भी शामिल करी गई। इस यात्रा में ध्यानचंद ने 101 गोल मारे, 262 यानी कि 262 गोल में सिर्फ ध्यानचंद का जो गोल संख्या थी 101 था, और जो उन्होंने स्वयं किए। निर्णायक मैच में यानी फाइनल मैच, निर्णायक मैच में जो इंडिया है उसने अमेरिका को 2-1 के मुकाबले 24 से जीता। मतलब 24 गोल हमारे इंडियन ने मारा और 1 मैच अमेरिका ने। तो इतनी बड़ी उपलब्धि लेके हमारी टीम जीती और दूसरी बार ओलंपिक में चैंपियन बनी। उसके बाद तीसरा ओलंपिक आया, बर्लिन में ओलंपिक खेल में ध्यानचंद के भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। इस समय वो कप्तान चुन लिए गए। इसी बीच में भारत ने हंगरी को हराया, जापान, फ्रांस, जर्मनी को हराया। जर्मनी के मुकाबले उन्होंने जो मैच जीता 8-1 से जीता, और उस समय जर्मनी का बहुत अच्छा टीम हुआ करता था। तो जो मैच था वो 14 अगस्त को तय था, लेकिन बारिश के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अगले दिन 15 अगस्त हमारे आज़ादी के दिवस के समय, उस समय हमारा आज़ाद नहीं था, बट डेट एक ऐसा था कि 15 अगस्त को तिरंगे को सौगंध लेके भारतीय टीम पूरा खेलने के लिए उतरी। उसमें जर्मन को 8-1 से ध्यानचंद जी ने अपनी जीवन काल में 48 मैच को खेला। ध्यानचंद को देखकर उनकी खेल के जब फाइनल मैच चल रहा था तब ध्यानचंद की जर्मनी के साथ था, तो उनके हिटलर आए। हिटलर ने देखा कि इतना गजब का खिलाड़ी, तो उनको बुला के बोला आप क्या, तो उन्होंने बताया हम अपने मेजर अपने देश में टीम में, तो उन्होंने कहा मैं आपको आर्मी चीफ बनाएंगे, आप हमारी टीम के साथ। बट हमारे ध्यानचंद इतने साधारण, इतने देशभक्त थे, उन्होंने हिटलर का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने बोला हमें भारत के साथ खेलने में गौरव प्राप्त होगा। तो 1956 में भारत में, अभी इन्होंने ये 3 ओलंपिक में हैट्रिक ले लिया, तीनों में गोल्ड मेडल लेके हम भारत का नाम रोशन किया। 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। एक खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का नाम इतना ऊंचा करके दिखाया कि हम लोग उनके सामने एक अद्भुत प्रेरणा है, हमारे सामने एक अद्भुत प्रेरणा है। अगर हमारे मन में हिम्मत और मेहनत ताकत है तो मन के विश्वास से जितनी भी कठिनाई है सब दूर हो जाएगी। ध्यानचंद की जिंदगी से, मेहनत से विश्व के खिलाड़ियों के सामने एक अलग अद्भुत मिसाल पैदा किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके में हमारा एक संदेश है आप लोगों के साथ में, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यह हम सब की जिम्मेदारी है, अपनी मेहनत ताकत के प्रयत्न करके हमारा देश का नाम रोशन कर सकते हैं और अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यह ध्यानचंद जी के जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी शिक्षा है। जिस प्रकार आसमान में चांद चमकते रहे, उसी प्रकार ध्यानचंद जी खेल जगत में चमकते रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ध्यानचंद जी का नाम रहेगा। आपके जीवन से मिलने वाली और एक शिक्षा है, जन्म लिया है जिस माटी में उसका कर्ज चुकाना है। खेल अनुशासन, संगठन शक्ति, पारस्परिक प्रेम, सहयोग, साहस, विश्वास, सहानुभूति आदि गुणों का विकास करके हमें सभ्य तथा सुसंस्कृत नागरिक बनाते हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचाया है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों के छात्र वृंद घर में बैठकर बहुत सारे क्रियाकलाप करके अपने तन एवं मन को स्वस्थ रखते हैं। अनेकता में एकता, केवी की विशेषता, एक राह के है मीत,
मीत एक प्यार के, एक बाग के है फूल, फूल एक हार के, देखती है ये जमीन आसमान देखता। अब हे भारी हिंदी भाषण की प्रस्तुत कर रही है नवीन बाकी श्रेया प्रदीप। श्रेया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकों एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोविड-19 घर पर फिटनेस एक फीडबैक इस विषय पर अपने कुछ विचार स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उनकी याद में ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का उद्देश्य है युवाओं में खेल के प्रति रुचि जगाना तथा युवाओं को खेल जगत के लिए आकर्षित करना। वैसे खेल आज आजीविका का साधन भी है, व्यवसाय और विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ है और सबसे बढ़कर राष्ट्र और क्षेत्रों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान से भी खेल जुड़ा हुआ है। खेल मनोरंजन एवं शक्ति के भंडार है। शरीर के सभी अंगों के कुशल संचालन के लिए खेल अथवा व्यायाम की अत्यंत जरूरत है। खेलने से शरीर स्वस्थ एवं मजबूत बन जाता है तथा मन संतुलित एवं शांत हो जाता है। खेल का मानसिक संतुलन और स्वस्थ शरीर के साथ साथ अनुशासन से भी गहरा संबंध है। खेल खिलाड़ियों में अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, साथ ही साथ सहयोग की भावना, आत्मविश्वास एवं अखंडता भी खेल बढ़ाता है। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को ही अपने घेरे में ले लिया है। इस घातक वायरस से ना जाने कितने लोगों की जीवन शैली प्रभावित हुई है, पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ा है। हम बच्चों की उम्र अभी खेलने पढ़ने की है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि खेलना मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य है। लेकिन देश भर लॉकडाउन होने के कारण जहां खेल बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास बढ़ाता था, सहयोग की भावना और आपसी प्रेम भाव बढ़ाता था, आज वहां वे अपने में सिमट गए हैं। क्योंकि बच्चे बाहर जाकर खेलने से चूक गए हैं। वे ना तो विद्यालय जा पा रहे हैं और ना ही अपने दोस्त या अन्य रिश्तेदारों के साथ खेल पा रहे हैं। वे अकेले खेलने के लिए विवश है। ऐसे में अधिकतर बच्चे अपना सारा समय एवं ऊर्जा टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के साथ बिताते हैं और व्यायाम करना ही भूल जाते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि वे मानसिक रूप से उदास और शारीरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे। उनका मन एवं शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अपने मित्रों से न मिल पाने के दुख और दिन भर घर के एक ही कोने में रहकर उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए खेलने अथवा व्यायाम करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना महत्वपूर्ण है जिससे बच्चों के मानसिक दबाव को कम कर दिया जाए तथा अकेलेपन को उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में बाधा पहुंचाने से रोका जा सके। घर में रहते हुए भी बच्चों को कैसे फिट बनाया जाए, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम बच्चे घर पर ही रहकर खेलना भूल गए हैं, दौड़ना भूल गए हैं, अकेले खेलना ही नहीं चाहते। लेकिन सरकार की पहल ने हमें ऊर्जा भर दी है। हाँ, हम घर में रहते हुए भी अपने को फिट बनाए रख सकते हैं। 10-15 मिनट दौड़कर, चलकर या व्यायाम करके हम अपने आप को स्वस्थ यानी कि फिट बनाए रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो आइए इस महामारी से जूझती हुई हम सब प्रण ले लेते हैं कि हम अपने को फिट यानी कि स्वस्थ बनाए रखेंगे और इस महामारी से लड़ने और इसे भगाने में अपना पूरी कोशिश करते रहेंगे। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हम स्वास्थ्य संगठनों द्वारा प्रदान किए गए उपायों का पालन करें। तो मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखिए और साथ ही साथ खेल के माध्यम से अपने को स्वस्थ यानी कि फिट भी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Shreya. We do understand that your voice is the voice of the entire students' community.
You have rightly pointed out that sports instill discipline, discipline which is a part of our life, which is life itself. I hope all the student community are following and doing the same what Shreya has shared with us. Thank you once again. Moving on, we do know that over the years, the Indian government has launched various schemes related to sports on National Sports Day, including Khelo India. This year, the theme is Fit India Movement. The Ministry of Ayush has issued guidelines to implement the Fit India Active Day program. The program is launched to make sure children practice fitness even when they stay at home. The program also intends to create immunity against COVID-19. It is rightly said, exercise should be regarded as a tribute to heart. The pain you feel today will be your strength for tomorrow. KVS has prepared an elaborate set of programs to ensure that the coming generation is safe and sound, both mentally and physically. The KVS curriculum envisages to make students fit and strong through various programs like Freedom Run, SBSB, Fit KVN, etc. To enlighten you more on this topic, may I call upon Mrs. Shiva N, TGT Hindi of our Vidyalaya to address you. Madam, please.